Hello students, today we are going to study our next topic, food and health. As you know, food is very important for us. Like all the non-living things which move, like you say car, motorcycle, they need fuel to run. Our body needs food to work. Food not only gives us energy to do work, but it also helps us to grow. Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Food is usually of plant and animal origin. Every living organisms need food to survive. फूड ना तो हमें सिर्फ एनर्जी देता है, बल्कि ये हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है और हमें फिट और हेल्दी रखने में भी हमारी हेल्प करता है. ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये मेन सोर्स हैं हमारा फूड का. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज करता है कि हमारे फूड में ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. Yes, our food is made up of many components like protein, carbohydrate, water, fat, vitamins and minerals. Food जो है it can be categorized into three main groups. We can categorize all the food into three main groups that are energy giving food, body building food and protective food. Energy giving food. Carbohydrates and fats, they come under the category of energy giving food, because they provide us energy and warmth. Bodybuilding food. Proteins, they are bodybuilding food because they help us to grow. Protective food. Vitamins. Vitamins and minerals are protective food because they protect us from diseases. Carbohydrates. Carbohydrates are the substances that is rich in energy and is made up of carbon, hydrogen and oxygen. The examples of carbohydrates are banana, potato, maize, wheat, bajra. These are the examples of carbohydrates. Then proteins. Proteins are bodybuilding food. They help us to grow. They help us to repair our worn out tissues. We should eat them moderately. नेक्स्ट इज़ अवर विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये हमें जो है काफ़ी ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि हमारे को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. here comes the example of fats. फैट्स यानी कि ऑयल, घी, बटर, ये सब जो हैं हमें फैट्स नेट से भी मिलते हैं. हमें जो है लेस अमाउंट में खाना चाहिए, और जबकि ये हमें एनर्जी देते हैं, वार्मथ देते हैं, लेकिन इनको एक्सेस में खाने से ओबेसिटी होती है. सो नाउ द मेन पॉइंट इज़ दैट वी शुड ईट एवरीथिंग बट इन अ बैलेंस्ड अमाउंट. डाइट इज़ we should take the diet which contains all the nutrients in proper amount. Such kind of diet is known as balanced diet. Balanced diet helps us to keep us healthy. Now what is health? Let's define the health. Health is a state of complete physical and mental well-being. हम उस व्यक्ति को हेल्दी नहीं कह सकते जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे चीखें नहीं आ रही, जो काम नहीं हो रहा है. कई बार आप फिज़िकली फिट होते हैं लेकिन मेंटली यू आर इन स्ट्रेस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलनेस. तो हमें जो है फिज़िकली भी हेल्दी रहना है और मेंटली भी हेल्दी रहना है. नाउ इफ़ वन इज़ नॉट हेल्दी देन what else? It means that he is suffering from some disease. If the person is suffering from disease, the disease word itself says a condition of disturbed ease. अगर हम disease word को split करते हैं तो हम split करने पे उसमें देखेंगे disturbed, DIS is disturbed
एंड ईज। व्हाट इज़ डिजीज़? डिफाइन डिजीज़ आप अपने चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर। डिजीज़ इज़ एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन बॉडी। These can be classified into two main groups, that is communicable disease and non-communicable disease. Now first we will talk about non-communicable diseases. Non-communicable diseases हम किसको कहते हैं? Let's define non-communicable disease. Those diseases which generally do not get transmitted from one person to another are known as non-communicable disease, जैसे diabetes, cancer, chronic लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये क्यों होती हैं? ये एक फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से हो सकती है, अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से हो सकती है। ये डिजीज़ तब होती है व्हेन एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली और दे मे बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ऑल्सो, दैट इज़ heart failure, cancer. Secondly, it could be disease that rises when there is a shortage of something. अगर आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स में कमी रहती है तो भी हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। So what do you mean by deficiency disease? Deficiency disease means lack of various minerals and vitamins in our food bring various disease, that these diseases called deficiency disease, or we can say deficiency disease caused by malnutrition are called deficiency diseases. Now we are going to check first deficiency disease, that is protein carbohydrate deficiency disease. Protein carbohydrate deficiency disease is, as you know, protein is a bodybuilding nutrient and carbohydrate is an energy giving nutrient in our body. We can see these diseases in very slum areas, people which do not get one square meal. ऐसे लोगों में देखी जाती है जिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों में आप देखोगे क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सिम्टम्स के बेसिस पे। इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, लूज संकन स्किन एंड संकन आइज़। इनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती, इनकी जो स्किन है वो लूज़ होती है, आइज़ संकन होती है अंदर की तरफ, और इनके जो हेयर्स होते हैं वो थिन और लाइट होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं और बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। हमारी डाइट में बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। ये जो मिनरल्स हैं चाहे हमें बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, बहुत लेस प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड है, बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम आयरन जो है वो कम लेंगे तो हमारे में हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे हमारे को डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, अनीमिया। ऐसे लोग जो हैं उनमें जो सिम्टम्स आते हैं, अ पर्सन लुक्स वीक एंड पेल एंड गेट्स टायर्ड वेरी इजीली। उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है यानी कि अनीमिया, उसमें जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट इज़ योर कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी डिजीज़। इस डिज़ीज़ में जो है आपको पता है कि हमारी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारे टीथ के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी जो टीथ हैं वो वीक हो जाएंगे और उनकी जो शाइन है वो कम हो जाएगी, वाइटनेस कम हो जाएगी, और हमारी जो बोन्स हैं वो वीक, सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ योर आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़। आयोडीन जो है वो जनरली हमें वाटर से ही मिल जाता है या वेजिटेबल से मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स में जो है आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है वहाँ की वेजिटेशन में, तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ नोन एज गॉइटर।
इसमें जो आपके नेक है उसके जो ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, और जो सफरिंग पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी जो नेक है उसमें स्वेलिंग। मैंने आपको बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है अनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है अनीमिया। वो दैट इज़ हीमोग्लोबिन इज़ द पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर टू योर ब्लड। ये जो पिगमेंट है ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी देता है और साथ में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज़ योर विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने मिनरल्स के बारे में बात की, वैसे ही विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़ेस। हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी टॉक अबाउट विटामिन में we mainly have vitamin A, B, C, D, E, K. So in this chapter we are going to study about vitamin A, B, C, D. विटामिन A जो है वो हमारे को जो है कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, इनसे मिलता है, और इसकी जो ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, आइज़ के लिए और स्किन के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो है नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें रात में दिखना बंद हो सकता है और हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी जो है हमें व्हीट, राइस, ईस्ट, लिवर, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, और ये हमारी मसल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है उसका नाम है बेरी। इसमें जो है पर्सन फील्स वीक एंड समटाइम्स इन एक्सट्रीम केसेस ही मे सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिलीज़, इंडियन गूसबेरीज़। ये हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टीथ्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ नोन एज स्कर्वी। इसमें जो हमारे गम हैं वो हमारे जो टीथ हैं, गम्स हैं, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं एंड समटाइम्स दे स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो। विटामिन डी जो है वो हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, एग्स, ये सब हमें विटामिन डी देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो अगर हम सनलाइट में जाएं तो वो अपने आप से भी विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है। ये हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टीथ के लिए भी, और इवन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हमारी बॉडी में कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होता है जब हम विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। हमारी जो लेग्स की बोन्स हैं वो बो शेप्ड हो जाती है। इस डिज़ीज़ का नाम है रिकेट्स। दिस इज़ नोन एज रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ई जो है वो हमें वेजिटेबल ऑयल्स, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, इन सब से मिलता है, और ये हमारी स्मूथ रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के जो है वो हमारे को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है और हमारे को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड की शॉर्टेज है तो हम देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और क्लॉटिंग नहीं होती है बहुत जल्दी। प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़, जो डेफिशिएंसीज अभी हमने देखी हैं उनका अगर हम जनरल वर्ड्स में हम ट्रीटमेंट बोलें तो वो यही है कि हम जो है इन विटामिन्स को लेना शुरू कर दें। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वन शुड टेक बैलेंस डाइट
हमारा जो फूड है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स की जो रेशियो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वन मस्ट टेक फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। सिर्फ खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को अपनी फूड प्रैक्टिसेस जो है, हमारी जो फूड हैबिट्स है, उनको भी एक्यूरेट रखना है। Children must be given adequate amount of milk and milk products and additional food items like juices, soft boiled rice, porridges, etc. Next is your communicable diseases. What is communicable disease? A disease which can be transferred from one person to another. जैसे नॉन कम्युनिकेबल में हम एक जो डिजीज़ पर्सन है, जो सिक पर्सन है, अगर हम उसके पास बैठे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि आपका कोरोना वायरस अभी आपने देखा, ये जो डिजीज़ हैं ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती हैं। हाउ डज कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड? दे मे स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट with an infected person, such as through touch, sexual intercourse, fecal oral transmission और ड्रॉपलेट्स। इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं जब हम उस पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट्स, जब हम किसी अनटाइडी या डर्टी चीज़ को टच करते हैं या कोई इन्फेक्टेड चीज़ को के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि फूड, ब्लड या वाटर, ऐसी कंडीशंस में जो है हमारे को डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। विद द बाइट फ्रॉम इंसेक्ट्स और एनिमल्स कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज़, जैसे मॉस्किटोज़ मलेरिया फैलाते हैं या डेंगू फैलाते हैं, येलो फीवर, फ्ली, प्लेग। These communicable diseases can also spread through air, such as tuberculosis और measles। ये जो है airborne diseases होती हैं। So I hope आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक healthy habits आप में डेवलप होंगी और and you will try to eat healthy and feel healthy and look healthy। Every day we should eat well. We should eat in a balanced amount. We should eat moderate amount of food, and we should take all the varieties of food. We should make healthy choices instead of taking pizza, burgers, and samosa, kachodis. We should go for green vegetables and fruits because they keep us disease free. Thank you, and please take care.